Good morning, students. Hoping that you all have solved yesterday's 5 problems for homework. The students who have solved, please upload the photographs in the chat box so that we can check out the answers, are they correct or not. So today we are going to start with our next problem, that is type second. Yesterday we discussed about how to calculate the gravitational force of attraction. The problems which we discussed yesterday, they were regarding, we had calculated the value of G over there. Today we are going to calculate the value of F. We are going to talk about the value of force of attraction in between them, or let us say we are talking about the gravitational force in between them. Yesterday we calculated the value of G. So in today's problem, let us study from your textbook too. The problem from your textbook, that is Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter. Suppose that this is Mahendra and this is Virat. They both are sitting and the distance between them is 1 meter. It means the value of R. Okay. Then their masses are 75 kg and 80 kg respectively. Respectively means simultaneously. Suppose Mahendra is of 75 kg and Virat is of 80 kg. So calculate the force between them. You have to calculate the force between them. What is the force between them? So the simple thing which we want to do, that is, first of all, write down the given data. What is the data given? We know radius, it is 1 meter. Already it is in meters, so need not to convert it. Then the weight, consider Mahendra's weight M1, that is 75 kg. Let us consider Virat's weight, that is M2, that is 80 kg. And the universal gravitational constant, as we all know, that is 6.67 into 10 raised to minus 11. The unit Newton meter square per kg square. So this is your data and you have to find out force. What is the force? So the formula for force, F is equal to G into M1 M2 upon R square. Put down the values, simple hai. 6.67 into 10 raised to minus 11 into the mass M1 75 kg, mass M2 80 kg, and the radius in between them, that is 1 meter. It means square of it. Okay. Now simple, डिनोमिनेटर में तो कुछ करने के लिए हमारे पास नहीं है, सो सीधा सीधा ऊपर के वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे. 6.67 इंटू 75 इंटू 80 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 लूँगा. अभी मैं मेरे मैथमेटिकल ट्रिक्स से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग आपके इससे भी सॉल्व कर सकते हो. मेथड्स दोनों के अलग अलग हो गए, लेकिन फाइनली वी विल गेट द सेम आंसर ओवर देयर. ओके. सो 10 रेज टू माइनस 11 जैसा कि वैसा रखूँगा मैं. अभी फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, द अनदर वन मोर थिंग, लेट अस राउंड ऑफ द थिंग्स. राउंड ऑफ कर दो थिंग्स तो फटाक से. सो व्हाट वुड बी द राउंड ऑफ फिगर देन देयर? लेट अस कॉल दैट दिस वुड बी डेसिमल 5 से बड़ा है इधर, तो मैं इसको 1 से बढ़ा देता हूँ और इस वैल्यू को 6.7 लेता हूँ. यू कैन, आपको फ्री हैंड होता है लेने के लिए. देन ये 75 इंटू 80 10 रेज टू माइनस 11 एज इट इज़. अभी यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे एक ज़ीरो है. मैं इस डेसिमल को और इस ज़ीरो को हटा देता हूँ, तो बचा क्या मेरे पास? 67 इंटू 75 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. अभी 75 इंटू 8, एज वी ऑल नो दैट 75 का डबल करो तो 150 होता है, उसका 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे ये होगा 600. 600 इंटू 67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. अभी इधर रफ में आप कर सकते हो. 600 इंटू 67 जब करोगे तो दो ज़ीरोज़ एज इट इज़ ले लो. फिर वहाँ उसके बाद 6 7 ज़ा 42 को 2 आ गया, कैरी 4 कर लो. 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40 हो गया. इट मीन्स इन ऑल इट इज़ 40200 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. अभी जब इसको मैं फर्दर अहेड सॉल्व करता हूँ तो व्हाट वुड आई गेट देन? ये -11 है, 1 2 3 4 प्लेसेस डेसिमल के हैं, तो लेट अस चेंज द डेसिमल ओवर देयर.
डेसिमल्स को शिफ्ट कर दो, मतलब -9 -10 -9 -8 -7, 4.02 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन. दिस वुड बी आवर फोर्स ओवर देयर. ये क्या होगा हम लोगों का फोर्स होगा वहाँ पे. सो द वैल्यू ऑफ F which is equal to 4.02 into 10⁻⁻7 Newton. This would be the value. अभी if we go with the logs and different methods, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, that is correct. ये 0 आ गया at first decimal, that is correct. यहाँ से आगे की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी. मान लो अगर कोई यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करता है तो उसके डेसिमल के बाद के वैल्यूज़ अलग हो जाएंगे. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. So this was our first problem for today's session. So hoping that you have understood it. करना क्या है देख लो फिर से एक बार. वैल्यूज़ पुटअप करने हैं और सिंपली सॉल्व करना है. जहाँ वैल्यूज़ को कन्वर्जन्स के लिए पूछा जाएगा जस्ट कन्वर्ट देम. इफ़ नॉट आस्क्ड नो नीड टू कन्वर्ट इट एट ऑल. सो दिस वॉज फॉर योर क्लास वर्क एंड नाउ आई विल गिव अनदर चार्ट फॉर योर होमवर्क. दैट इज़ कंसिडर दैट कल के ही जैसा मास m1 होगा, मास m2 होगा, उसके साथ साथ रेडियस भी दिया होगा एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सारी जगह पे सेम होता है. यू हैव टू फाइंड आउट F. तो ये पहला प्रॉब्लम. सपोज द मासेस आर 150 kg और दूसरा मास लेते हैं हम 90 kg और रेडियस लेते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर. देन उसके बाद अभी यहाँ पे कन्वर्जेंस के लिए बता रहा हूँ आपको मैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. मान लो आपको 15 किलोमीटर दिया है तो आपको लेना कैसा है 15 इंटू 10⁻³ मीटर्स. क्योंकि तो SI यूनिट है मीटर, तो इसको ऑलवेज वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन SI यूनिट सिस्टम. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग which about the next problem, about the problem for homework similarly. Let us consider that there is a weight given over there. That weight should be, I think, okay, let us take the weights. 750 ग्राम. आपको कन्वर्जन करना है यहाँ पे. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स होता है ना. तो आपको यहाँ क्या करना होगा देन. सिंपली है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो प्लस माइनस करके आपको कन्वर्जेंस करने हैं. सो यू वुड बी सॉल्विंग इट, होप सो. अगर नहीं समझ आता है तो मैं कल से फिर से सॉल्व करके बता दूंगा. देन सेकंड वेट ले लो आप. लेट अस कंसिडर 15 kg और यहाँ डिस्टेंस लेते हैं हम 5 मीटर्स. ओके. देन द थर्ड प्रॉब्लम अगेन क्या लेते हैं. ओके, तो वेट्स लेते हैं यहाँ पे 40 kg एक का लेते हैं, 60 kg एक का लेते हैं और दिस टाइम वी वुड बी टेकिंग द डिस्टेंस एज सपोज 500 मीटर्स का डिस्टेंस लेते हैं. ओके. सो होपिंग यू ऑल विल सॉल्व दिस. ये आपको HW के लिए है बेस्ड ऑन द टाइप 2. कल का टाइप 1 था, आज का ये टाइप 2 है. आपको दोनों प्रॉब्लम्स ढंग से सॉल्व करने हैं एंड देन होमवर्क सेक्शन में आपको पुट करना है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप. टाइप 3 की ओर जाएंगे हम प्रॉब्लम्स की. सो थर्ड टाइप में हमें प्रॉब्लम देखना है अबाउट द सिमिलर वन, लेकिन बस अभी हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखना है. अब जो प्रॉब्लम्स देखने हैं दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ. सपोज दैट एक मास दिया गया आपको. सपोज अ बॉडी ऑफ मास 75 kg is on surface of earth. Okay, it is at the surface of the earth. So calculate the gravitational force. Calculate the gravitational force on that body. तो सिंपल है. अभी यहाँ पे वन स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है. डेटा लिखना है हमें. डेटा क्या है हम लोगों के पास देन
अभी यहाँ पे थिंग्स गो ऑन चेंजिंग। मास m1 या फिर मास ले लो, दैट इज मास ऑफ द बॉडी 75 kg है। देन द सेकंड थिंग, मास ऑफ द अदर बॉडी, अदर बॉडी मतलब हमारी क्या होगी, अर्थ होगी। तो अर्थ का वेट कितना है हम लोगों के पास, 6 × 10⁻24 kg है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप सीरियल भी चेंज कर सकते हो, अर्थ का मास m1 लेके बॉडी का मास m2 भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन रेडियस ऑफ द अर्थ एट द सरफेस है ना, सरफेस है तो रेडियस ऑफ द अर्थ लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंटर टू द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6.4 × 10⁻6 मीटर्स में लेना है हमें रेडियस। देन अगेन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g क्या है हम लोगों के पास, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. So now putting it all in the formula. So what is the formula over there then? F is equal to g m1 m2 upon r square. वैल्यूज पुट कर लो इसके, g का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ या फिर बॉडी का मास 75, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो अभी, 6.67 यहाँ लेता हूँ इंटू 75 × 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24 सारे जो है एक साथ लेता हूँ इंडाइसेस को। देन 6.4 का स्क्वायर क्या होगा, 6.4 × 6.4 ओके। देन उसके बाद 10⁻6 × 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 × 2 12, नीचे जो +12 है ऊपर जाके -12 हो जाएगा। नाउ लेट अस सॉल्व इट। सिंपल स्टेटमेंट्स में सॉल्व करना है इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हैं। सो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन देन, यहाँ पे 2 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है, डिडक्ट इट, बच गया क्या, 667 × 75 × 6 डिवाइडेड बाय 64 × 64 इंटू यहाँ पे क्या होगा 10⁻24 10⁻11 -12 -11 -12 -23 मतलब यहाँ पे आ गया 10⁻1। अभी व्हेन वी विल सॉल्व दिस ऑल, सिंपल है, 667 इंटू सेम थिंग यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे क्या होगा 75 × 6 मतलब इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 600 होगा डिवाइडेड बाय 64 × 64। राउंड ऑफ करके सॉल्व कर लो या किसी तरह से सॉल्व कर लो। व्हेन वी विल सॉल्व दिस ऑल सम, ये सम टोटली सॉल्व करने के बाद होपिंग सो दैट वी गेट समथिंग देयर एज 73.3 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, मैंने मतलब जब रफ में सॉल्व किया था तो ये वैल्यू था उसका। तो सपोज दैट इज 73.3 × 10⁻1, तो ओवरऑल क्या होगा, ये 10⁻1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 733 न्यूटन्स होगा। फोर्स कितना होगा, द फोर्स वुड बी 733 न्यूटन्स। 733 newtons would be the force, gravitational force acting on the body of mass 75 kg on the surface of the earth. So एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लो विद इन 1 मिनट, उसके बाद होमवर्क के लिए अलग से और प्रॉब्लम दूंगा। सो होपिंग यू आर क्लियर विद इट। होमवर्क के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट होमवर्क के लिए यही प्रॉब्लम पे देता हूं मैं, टाइप 3 का होमवर्क है ये। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही लेना है आपको, वहाँ पे मास, उसके बाद रेडियस, ये दोनों अर्थ के लेने हैं, कीप इन माइंड। तो बस मास और मैं क्या दूंगा अभी आपको वहाँ पे, आई वुड बी गिविंग ओनली द डिफरेंट मासेस। सपोज दैट कोई बॉडी है जहाँ पे उसका मास ऑफ द बॉडी, एक प्रॉब्लम ले लो जहाँ पे 90 kg होगा, दूसरा प्रॉब्लम ले लो जहाँ पे मास ऑफ द बॉडी होगा 150 kg, और तीसरा प्रॉब्लम ले लो जहाँ पे मास ऑफ द बॉडी होगा 500 kg, और चौथा प्रॉब्लम ले लो जहाँ पे मास ऑफ द बॉडी, लेट अस कंसीडर कोई सैटेलाइट है हम लोगों का, उसका मास हमें अब द रॉकेट लॉन्चर है जिसका हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे मास लेकर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है उसको कैलकुलेट करना है। लेट अस कंसीडर इट एज 1500 kg। तो ये 4 प्रॉब्लम्स
टाइप सेकंड के अंदर जो आपको 3 दिए थे वो 3 और कल वाले 5, तो आई थिंक ओवरऑल 5 + 3 8 + 4 12 problems are there for your homework from type 1, type 2 and type 3. So by tomorrow morning everyone must complete the solutions, everyone must attempt the problems and just submit your answers on the chat board. That's all for today.